Identification parade will be topic of our discussion today, and like previous sessions it will be interactive today, inshallah. Any one of you know about identification parade proceedings? Tell me if you know about it. Identification parade, a lot of हमारे पास FIRs आती हैं और जैसे offenses होते हैं पब्लिक से, जिन्होंने कहा होता है कि नामालूम अफराद, जहाँ पे नामालूम अफराद आ जाता है वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन परेड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें उन्होंने वो जो मुलज़म होता है उसके फेस पिक्चर हाइट ये वो व्हाट्सएवर उन्होंने मेंशन कर दिया होता है। इसी तरह जब वो किसी और मुलज़म को पकड़ते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो जाते हैं, मजिस्ट्रेट साहब जो है वो उनकी आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करते हैं, लाइक उनको एक लाइन में खड़ा किया जाता है, 8 से 10 लोग होते हैं, ये उनका अपनी मर्जी है कि जितने वो लोगों को खड़ा करेंगे, और फिर उनको बारी बारी लाया जाता है और जो चीज़ें लाइक जो चीज़ें उन्होंने मेंशन की होती हैं कि ये इस टाइप का वो बंदा है, ये उसका फेस पिक्चर व्हाट्सएवर, तो अगर वो आइडेंटिफाई करता है तो देन फिर वो आइडेंटिफिकेशन परेड को वैलिड कर दिया जाता है कि हाँ इसी बंदे ने ये जो चीज़ है वो कंडक्ट किया। All of you are getting the point whatever she is saying about the identification parade. So do you think that this is the only condition, that whenever the features are given in FIR and the culprits are unknown, identification parade proceedings will be conducted? This is the only ground for you? Not only for accused, like jailers and money, whatsoever. No, this is not what I am saying. I am saying that do you think that whenever the names of accused persons are not mentioned in FIR and later on in some supplementary statement the names are given, this is the only condition when identification test parade proceedings are conducted for arriving at the conclusion that such and such person has committed this occurrence? There may be another reason. If the memory of the witness is so weak and he cannot recollect things properly, even accused can request for the identification test proceedings that I was not the person who has committed such and such occurrence. What is the provision relating to identification test proceedings in QSO? Article 22. Some other cross references. High Court Rules and Orders. Chapter 11 Part C. 11C. Volume 3. Anything more? Police Rules 1934. Police Rules 26 and 32 rules. Police Rules 1934. I am not sure about this. Can you ensure? So chapter number 27 and rule number 25. 25. Yes. You may assure it. Anything else about instructions regarding conducting of identification test proceedings? There are two provincial instructions, provincial government instructions
One was issued in 1936 to district magistrates, and the second one was issued in 1943. If you will see High Court Rules and Order Volume 3, Chapter 11C, you will see these two notifications too. One is notification number 6091J36 39829, that was issued in 1936. J36, and the second one is that was issued in 1943. How to conduct the identification test proceedings? These are the instructions. These are the guidelines. Letter number है पंजाब गवर्नमेंट सर्कुलर लेटर नंबर 6546J 43/83844. You can find it in High Court Rules and Order Volume 3. You must have this book with you all the time because that Volume 3 deals with criminal proceedings, which is issued by High Court Rules and Orders Volume 3. Now, what are those instructions and guidelines? What are those precautions which magistrate has to keep in mind while conducting identification test parade proceedings? What are those? Every one of you know about the statute. This is Article 22. This deals with the identification test parade proceedings, and these are the cross references which you can jot down in your examination. This will show that you have a deep knowledge about the subject. Now, practically what happens? प्रैक्टिकली तो यही होता है जब उनको रिमांड में लाया जाता है. मैं तो जिस चीज़ के बारे में पढ़ा है उसी में करूँगी. प्रैक्टिकली जो देखा है जो होते हैं उनके फेसेस होते हैं अनकवर्ड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल वो कवर्ड होने चाहिए ड्यूरिंग रिमांड. और उसके अलावा जो होता है उसमें मुस्तगीस होता है, उसको उनके बारे में कोई लाइक जो भी कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं उसके बारे में उसको किसी तरह का भी आइडिया. Have you ever gone through the latest judgment on the subject authored by Honorable Mr. Justice Asif Saeed Khosa on the subject? Can anyone of you tell about that judgment? Everything is discussed in that judgment. What will be the manner, what will be the mode, and what precautions you will observe while conducting identification test parade proceedings, because this is a rule of propriety. On the one hand, this is an evidence for prosecution, though it is not conclusive evidence. But on the other hand, defense can point out many things that such and such formalities, codal formalities were not observed, and accused should be granted benefit of doubt. Now that judgment is in PLD, SCMR, but PLJ, I can remember PLJ 2019 Supreme Court Criminal Cases 153. This is the judgment. If you will go through this judgment, you will know everything about the identification test parade proceedings. This is the judgment. Now, there are certain formalities which should be observed. These are the requirements. Without observing those requirements,
identification test parade proceedings will be nullity in the eye of law if anyone is missing. मिसाल के तौर पे होता ये है कि कोर्ट में मफल्ड फेसिस में मुलज़म को लेके आते हैं, आईओ रिक्वेस्ट करता है, रिटर्न रिक्वेस्ट करता है मजिस्ट्रेट को कि ये मामला है, ये मुलज़म है, फ़लाँ विटनेस जो है इनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसमें जेल प्रीमिसेस में. आइडेंटिफिकेशन इन पुलिस स्टेशन इज़ नॉट अ वैलिड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट प्रोसीडिंग्स. ना ही आइडेंटिफिकेशन पैरेड जो है या आइडेंटिफिकेशन कोर्ट में कोई वैल्यू होगी. उस एक सम इवेंचुअलिटी है कि जिसमें वो देखेंगे, लेकिन वो आपका अभी सब्जेक्ट नहीं है. आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, ठीक है. बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए. मफल्ड फेसिस में वो पेश होंगे. आज मैंने ना प्रैक्टिकली देखा था वो ना हाई कोर्ट में वो केसेस में ना जैसे वो कपड़े का थैला नहीं होता तो करते उनके ऐसे फेसेस की तरह ऐसे अपना आंखें ऐसे वो दो ना दायरे से जी जी उधर से नजर आ रहा था. तो जा रहे थे, मुझे वाकई अभी ना प्रैक्टिस में ज्यादा देर नहीं हुई तो मैंने सर से पूछा था ना, तो कहते हैं कि मैंने कहा हाई कोर्ट में क्यों इनको लेके आए हैं, तो वो ये कह रहे थे कि शायद इनके जो मतलब की फैमिली है उन्होंने हेबियस कॉर्पस की रिट जो है ना वो फाइल कर दी है. तो सर वो उसका थोड़ा सा भी साथ में बताइएगा. to their purpose was not to disclose the identity of those persons as the investigation is under progress. अगर मुल्ज़मान को अदालत में मफल्ड फेसिस में पेश नहीं किया जाता या वैसे वो पब्लिक एट लार्ज में उनको सबको दिखाया जाता है तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उसकी तो फिर वैल्यू नहीं होगी, ठीक है. दैट्स वाई कि ये रिक्वायरमेंट है कि बिलेटेड जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परेड प्रोसीडिंग्स है वो नहीं होनी चाहिए. कोशिश होनी चाहिए कि विद इमीडिएट इफ़ेक्ट जितना जल्दी उसको किया जा सके उसको करना चाहिए, ताकि वो जो टाइम कंजम्पशन अगर बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी तो फिर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने का अंदेशा होगा. दिस इज़ द रीज़न. सर ये जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लाया जाता है कंप्लीट को, देन उसको 24 आवर में जब पेश किया जाता है, बल्कि तो 3-3 4-4 दिन पुलिस स्टेशन में रखने के बाद उसको मजिस्ट्रेट साहब के पास रिमांड में पेश किया जाता है. वो पुलिस की हाई हैंडेडनेस है, वो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें नहीं आती, बट पीपल कैन ऑब्जेक्ट बिफोर मजिस्ट्रेट. अगर फिजिकल रिमांड के लिए पेश किया जाता है, दिस इज़ राइट ऑफ अक्यूज्ड टू रेज ऑब्जेक्शंस दैट ही वाज टॉर्चर्ड बाय देम, या उसको इतने दिन से दैट फैक्टम शुड बी रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर शीट कि अगर कोई ये राइट है. ये आपने केस पढ़ा होगा, ये नोट जो बोलता हूँ ये नोट कर लिया करें. गुलाम सरवर केस है, रिमांड के हवाले से 1984 PCRL जो है उसको एग्जैक्टली पेज तो पता नहीं 2499 है, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन गुलाम सरवर केस जो है वो एक फेमस केस है कि जिसमें गाइडलाइंस दी गई हैं फिज़िकल रिमांड के हवाले से कि क्या रिमांड शुड बी ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी थिंग और इट शुड बी व्यूड विद एन इम्पॉर्टेंस, कि इसको कैसे देखना चाहिए, ठीक है. क्योंकि अगर कोई बंदा रिमांड के लिए फिज़िकल रिमांड के लिए आता है तो वैल्यूएबल राइट है आपका, आपकी लिबर्टी जो है वो मोस्ट सेक्रेड राइट है. और 24 आवर्स वाली कंपल्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पोज की हुई है, उसके बाद आपके कोड में है वो, ठीक है. तो ये चीज़ें उसका राइट है कि उसको 24 आवर्स में पेश किया जाए नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, इसका राइट है. और विदाउट असाइनिंग हिम रीज़न दे कैनॉट कीप हिम बिहाइंड द बार्स फॉर इंडेफिनिट पीरियड. दिस इज़ अ चेक इम्पोज बाय लॉ कि मजिस्ट्रेट को पता होना चाहिए कि मेरे एरिया में या पुलिस स्टेशन में इतने बंदे हैं और वो किसी ऑफेंस में हैं. अगर वो हेबियस आई है जिसकी ये बात कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न होगी कि विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR दे आर कीपिंग दी पर्सनस बिहाइंड बार्स इन पुलिस स्टेशन, इन पुलिस लॉकअप. तो ये सारी चीज़ें. इसी तरह जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परेड प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, मजिस्ट्रेट ने बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ये सारी चीज़ें ये जो पंजाब गवर्नमेंट के ये जो नोटिफिकेशंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, ये केसला, ये वॉल्यूम 3 हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का या पुलिस रूल,
व्हाट आर दे सेइंग? ये कह रहे हैं कि सच एंड सच रिक्वायरमेंट्स आर टू बी फुलफिल्ड बिफोर कंडक्टिंग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परेड प्रोसीडिंग्स। इसमें रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट जिसकी बात अभी हो रही थी कि मफल्ड फेसेस होने चाहिए, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। आप टाइम, मजिस्ट्रेट साहब टाइम फिक्स करेंगे, दिन फिक्स करेंगे कि मैं ऑन सच एंड सच डे आई विल विजिट जेल प्रीमिसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परेड प्रोसीडिंग्स। विटनेसेस विल बी आस्क्ड टू रीच देयर ऑन दैट वेरी डे। उसके बाद जेल के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं कि आप ये इंश्योर करेंगे कि जो विटनेसेस, अगर एक विटनेस आइडेंटिफाई कर रहा है तो दूसरे विटनेस तक पहले विटनेस की रसाई ना हो। ठीक है, दे शुड नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, अदरवाइज कम्युनिकेशन होगी तो वो बता देगा यार वो जो फलां बंदा है ना वो तीसरे नंबर पे है या चौथे नंबर पे है, वो खड़ा है, जो भी है वो बंदा है। इसमें ये भी रिक्वायरमेंट है, इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर एक मुलज़म की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परेड प्रोसीडिंग है उसमें आप 9 डमीज़ मीन्स के 9 उसी स्टेचर के, उसी हुलिये के बंदे, सेम फीचर्ड पर्सन यू विल चूज़ फ्रॉम जेल प्रीमिसेस, आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते, अगर एक बंदा है उसकी दाढ़ी है तो आप कहेंगे कि जो लाइन बनी है उसमें एक दाढ़ी वाला नहीं है तो उसका कुछ दाढ़ी वाला कुछ कर लेंगे। उनकी हाइट सेम होनी चाहिए, उनका सोशल जो स्टैंडर्ड है ऑफ लिविंग है वो आपकी पर्सनैलिटी डिपिक्ट करती है कि किस सोशल स्टैंडर्ड का ये बंदा है, उसी लेवल के आप बंदे, ताकि वो जो है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परेड प्रोसीडिंग्स जो है वो कंडक्ट हो सके। नाउ so there are 2 reasons for conducting identification test proceedings. One is that you will go for the identity of the person, identity of that person about whom a suspicion is made or whose identity is to be verified, who is being seen with skeptic eye. I was just confused by one question. Can you please explain the major purpose behind the dummies? हाँ, मतलब ये है, मेजर पर्पस ये है, अगर एक ही बंदा है जिसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट प्रोसीडिंग्स करनी है और विटनेस आता है, सामने एक बंदा खड़ा है, तो विटनेस क्या कहेगा कि यही है ऑब्वियसली। अब जब को इफ ही विल हैव टू चूज फ्रॉम दोज पर्सन्स एंड देन ही विल अराइव एट ए solid conclusion that such and such person. Yeah. Now the second reason is that the person identifying the witness will also divulge about the role played by that man in the alleged occurrence. वो बताएगा कि भाई इसने किया क्या था, इसने पिस्टल रखा था। अगर सपोज रॉबरी केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं, या वहाँ जहाँ विटनेस ये कहता है कि भाई इसके सच एंड सच फीचर्स थे, दाढ़ी थी, कद छोटा था, फलां था, जो भी था, जो भी वो बताते हैं, ठीक है, और उनको पुलिस अरेस्ट करती है। अगर वो इम्प्लीकेट हो जाते हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है, अगर वो ततिम्मा बयान में जिसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहते हैं वो आ जाते हैं। हालांकि जहाँ पे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आ जाती है वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परेड प्रोसीडिंग्स की वो एज सच नहीं रहती, क्योंकि वो दे डाइवर्ज सोर्स के वो बताते हैं कि यहाँ से हमें पता चला कि ये है, लेकिन ये पुलिस यहाँ की वहाँ भी करवाती है। दूसरी इसमें जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप फीचर्स बताते हैं तो फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट प्रोसीडिंग जो है ये कंपल्सरी हो जाती है कि आपने वहाँ तक पहुँचना है। और ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो लॉ इनिशिएट किया है सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने या जो कुछ भी है, कि रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है कि रोल इज़ आल्सो टू बी सीन दैट व्हाट रोल ही हैज़ प्लेड। अगर वो कहता है सिंपली आके विटनेस कह देता है कि ये विटनेस था, ये मुल्ज़म था जिसने उस वक्त ये किया था, तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। बताना है कि इसने पिस्टल मेरी गर्दन पे रखा या जो कुछ भी किया, वटेवर जो कुछ भी उसने किया, he has to tell about these things. ये मफल्ड फेसेस का क्या काम है? मफल्ड फेसेस का काम अगर तो हो ही वो पुलिस स्टेशन में रही है, मजिस्ट्रेट और विटनेस वहाँ है, तो फिर उनके मफल्ड फेसेस
नहीं, देखिए ना, मफल्ड फेसेस इसलिए हैं कि जब उसको रिमांड पर्पस के लिए पेश करना है या आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए पेश करना है, तो ही हैज़ टू सीक परमिशन फ्रॉम मैजिस्ट्रेट, ही हैज़ टू ही विल बी ब्रॉट इन कोर्ट प्रीमिसेस। तो वो जो कोर्ट में आएगा, किसी गाड़ी में आएगा, लोगों में से जाएगा, सारा कुछ होगा, उधर अगर पुलिस कहती है कि भैया आ जाओ, एक ऑब्जेक्शन जो वो रेज़ करते हैं, लेकिन पहले आपकी बात कंक्लूड हो लेनी चाहिए कि वो आते हैं, उस टाइम पे गवाहान देख सकते हैं ना उसको। तो अगर गवाहान पहले ही देख लेंगे तो जाके जेल में भी तो उसको पहचान ही लेंगे। टू रूल आउट दिस थिंग मफल्ड फेसेस शुड बी। अच्छा, दूसरी इसमें बात एक और चीज़ है, एक तो पॉइंट आउट रोल प्लेड। अगर उसको रोल दिया गया है कि इसने मेरे इधर शोल्डर से पकड़ा, तो क्या वो जब आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही होगी तो वो उसको वैसे ही परफॉर्म करेगा, उसी तरह उसको शोल्डर से पकड़ेगा आइडेंटिफिकेशन परेड में? वो एफआईआर में कह देता है कि नहीं मेरे इधर शोल्डर से पकड़ा, नहीं, वो बहुत से और विटनेस मैंने उसको उसका फेस नहीं देखा, हाँ। लेकिन अगर मतलब उसकी हाइट वगैरह इस चीज़ को मैं इमेजिन कर सकता हूँ, या उसके हाथों से, या फिर समटाइम होता है इस तरह की चीज़ें। फिर तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, कोई टेलीपैथी या कुछ इस किस्म की चीज़ होगी। अगर उसने देखा भी नहीं तो फिर वो कह देगा कि कि इसने इतनी फोर्स के साथ ग्रिप किया मेरे शोल्डर को। चलें, पढ़ के मुझे बताइएगा। टाइम दिया होता है कि जब अक्यूज़ अरेस्ट हो जाए तो कितने दिन में ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद उसकी तो एविडेंस की वैल्यू एविडेंशियल वैल्यू जो है ये कम होती जाएगी अगर पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर टाइम ज़्यादा गुजर जाएगा तो फिर ऑब्वियसली उसको कोर्ट्स जो है वो जो है सस्पिशियस आई से देखती हैं, शक की नज़र से देखती हैं कि इतना टाइम गुजर गया, यार बहुत से लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। तो ये डिमांड यही है, मैंडेट ऑफ लॉ यही है कि इट शुड बी कंडक्टेड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। 15 दिन का टाइम दिया वो नहीं, वो 15 डेज़ का वो केस लॉ जो है वो एज ए रेसिडेंट ऑफ साइट इसलिए नहीं कर सकते, वो कंट्राडिक्टरी स्टांसेस भी हैं डिफरेंट कोर्ट्स के, ठीक है। तो बेसिक चीज़ ये है कि विद इमीडिएट इफेक्ट आप इसको जितना जल्दी एज सुन एज पॉसिबल कर लें तो वो जो है। अच्छा, दूसरी इसमें जी सर मुझे क्वेश्चन याद आ गया, एक्चुअली केस था उसमें कहते हैं कि इसने मुझे ना स्प्रे वगैरह होता है ना अनकॉन्शियस करने के लिए, तो उसने कहा था कि इसने जैसे मेरे फेस पे रखा, अगर वो मेरे फेस के ऊपर दोबारा हाथ रखा जाए तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं। Yeah, if it is the demand of witness that I can identify from these persons who are standing before me, if they turn but and put their hand at my face and I can judge, though very less value will be attached to this identification test proceedings by court. ये अगर उसकी डिमांड है, वो ये कहता है। अब देखें, अगर एक तो ये it is need of prosecution agency and investigation agency because identification test proceedings are a part of collection of evidence. What is investigation? Collection of evidence. और आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो भी एक पार्ट है कलेक्शन ऑफ एविडेंस का, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन परेड उधर होगी कि जहाँ पे, जिस तरह आप कह रही हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये रॉबरी केसेस में होता है, या इवन मर्डर केसेस में भी बहुत सा ऐसे चीज़ें जो हैं वो आती हैं। अगर आप वो इंग्लिश केस लॉ पढ़ेंगे या अमेरिकन केस लॉ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी नोवल चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये corroborative piece of evidence, this is not conclusive piece of evidence. If prosecution has only identification parade with them and no other solid evidence is available to them, then what value can be attached to mere identification test parade proceedings? इसको पढ़े ज़रा आर्टिकल 22 को, क्या कहते हैं ज़रा कोई एक बंदा जो इसको पढ़े।
necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact, or which support or rebut or inference suggested by a fact in issue or a relevant fact, or which establish the identity of anything or a person whose identity is a relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened, or which show the relation of parties by whom any such facts are transacted are relevant, is so far as they are necessary for the purpose. So what is the necessary purpose? By conducting identification test proceedings to establish a relationship with the fact in issue. What is the fact? फैक्ट ये है या वो फैक्ट इन इशू क्या है कि भाई सच एंड सच अकरेंस जो वो हुई है या नहीं हुई, ठीक है. तो दिस इज़ अ लिंक. ये एक आप ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस है ऑन पार्ट ऑफ पुलिस एजेंसी. नाउ इवन एन अक्यूज पर्सन, नाउ द सेकंड इंस्ट्रक्शंस व्हिच वर इशूड इन 1943, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंस्ट्रक्शंस इन्हीं चीज़ों के बारे में थी कि अगर अक्यूज ये स्ट्रेस करता है, अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि आई एम नॉट द पर्सन who has allegedly committed such and such offense for which I am being charged, I put myself at the mercy of witness that I should be identified in identification test parade proceedings. तो ये रिक्वेस्ट जो है वो लाइट नहीं लेनी चाहिए. अगर वो पुलिस को कहता है, वो एरिया मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुलज़म भी कर सकता है कि भाई ये गलत मेरा जो है, अगर वो ऐसी बात है तो आई थ्रो ए ड्यूल एट हिज फीट, चैलेंज करता हूँ मैं कि मुझे साबित करे कि मैं हूँ या नहीं. ठीक है. तो ये चीज़ जो है वो अक्यूज़ की रिक्वेस्ट पे भी हो सकती है. और ये 1943 का जो नोटिफिकेशन है, ये जो इंस्ट्रक्शन हैं, ये तभी आया कि जब इसमें एक दो केसेस हुए कि जिसमें उन्होंने स्ट्रेट अवे अक्यूज़ की रिक्वेस्ट डिनाई की कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परेड प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए मेरी भी, मेरी वेरासिटी को चैलेंज किया जा रहा है, मेरी आइडेंटिटी को कंफ्यूज किया जा रहा है, मैं नहीं हूँ. इंज गल है तो उन्होंने आखो मैनू पहचाने. ठीक है ना. तो उसकी रिक्वेस्ट को लाइट नहीं लेना चाहिए जहाँ पे सर्कमस्टांसेस सिर्फ इस वजह से कि भाई अब मामला डिले होगा या ये होगा या वो होगा. यू हैव टू अराइव एट अ जस्ट कंक्लूजन. ठीक है. अब ऑब्जेक्शन अमूमन कौन से रेज करते हैं, मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो वो मलहूज़े खातर रखेगा आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान. In every identification parade, most of the time, accused persons raise an objection that I was shown to the such witnesses before this episode, कि इससे पहले जो आज ये हो रहा है, ये जो मामलात चल रहे हैं, इससे पहले मुझे थाने में SHO ने बुला लिया था गवाहान को कि आ जा यार पहला उन्होंने वेख लै जिन्हों तू पहचानना. ये ऑब्जेक्शन वो मुलज़म रेज करता है और ये ऑब्जेक्शन इन द वर्ड्स ऑफ अक्यूज्ड, जो अल्फाज वो बोलेगा वो मजिस्ट्रेट लिखेगा. ठीक है. एंड he will leave these things, he will leave this objection to be decided by trial court. वो देयर एंड देन उसको डिसाइड नहीं करेगा कि नहीं है तेरा ऑब्जेक्शन गलत है. ठीक है. ये जो केस ला है, ये आप समझें कि सारी आपका जो क्वेश्चन है उसको डील करता है. और इस टॉपिक को एज ए होल आप देखेंगे तो आपको मार नहीं पड़ेगी अगर आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे. ठीक है. और क्या बात हो रही थी? हाँ, ऑब्जेक्शन जो है वो आप मजिस्ट्रेट जो है वो लिखेंगे. ठीक है. उसके बाद जिस तरह बताया कि जो रोल विटनेस जो कहेगा कि ये रोल इस बंदे ने प्ले किया था वो भी आ जाएगा. ये सारी चीज़ें डिमांड ऑफ स्टैच्यूट हैं, डिमांड्स ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, डिमांड्स ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस हैं.
ठीक है, बाकी आपको पता है कि इट इज़ नॉट कंक्लूसिव, लेकिन दो इट कैन बी इन अ corroborative फॉर्म, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन सम केसेस। ठीक हो गया। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? अगर पुलिस वो 54 की है वो 9 ग्राउंड्स, सेक्शन 54 CRPC, उसकी 9 ग्राउंड्स है ना, है आपके पास CRPC? वो कौन सी हैं वो जहाँ पे वो अरेस्ट करते हैं? हाँ, Arrest of vagabonds, when police may arrest people. Any person who has been concerned in an committable offence or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicions exist of his having been so concerned. Secondly, any person having in a possession without a lawful excuse the burden of proving of which excuse shall lie on such a person any implement of housebreaking. Thirdly, any person who has been proclaimed as offender. Sorry to interrupt you. Reasonable suspicion is there. Reasonable suspicion is there, and the person is arrested by police on the basis of some hidden information or some suspicion that such and such person can be a culprit in that dacoity with murder, whatever else, whatever the allegation is against. They can arrest him. Now they will put that person before area magistrate and they will seek permission of area magistrate, and such information has been received about this, and this can be a person, though they have to assign reasons. उनको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं जो हम इस पे शक का इज़हार कर रहे हैं। तो अगर उसकी वो आइडेंटिफिकेशन पीरियड लेटर ऑन होती है और वो बंदे विटनेस जो हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, क्योंकि बहुत से लोग हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो बंदा वही होता भी है, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है यार मेरे साथ ये डकैती होगी, मैंने ये चीज़ें जो है ये लूज़ की हैं, जो कुछ भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन डकैतों के साथ मेरी आगे एनमिटी बन जाए। तो वो लोग आइडेंटिफाई नहीं भी करते। ये इट इज़ लैक ऑफ सिविक सेंस। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू ज़रूर आइडेंटिफाई कर, तो फिर वो केस डिस्चार्ज का बन जाएगा मामला कि भाई एक ही सर्कमस्टांस था उस बंदे के अगेंस्ट और वो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुई, तो व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स, व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर इन्वेस्टिगेशन, कि क्या फिर इसको हम कलेक्ट करें या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो दूसरी इसमें बात जो आपके ज़हन में सवालात हैं इसके बारे में वो आप पूछें जी। आर्टिकल 22 डील करता है आइडेंटिफिकेशन पीरियड को। जब आप पेपर में लिखेंगी तो आप ये जो क्रॉस रेफरेंसेस हैं इसमें जजमेंट भी लिखेंगी। इंस्ट्रक्शंस अगर आप हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर की निकालते हैं तो वो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उनमें से 2-3 लिख देंगी तो वो आपको बड़े नंबर देगा। ठीक है, ये मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, मेरे पास है। Instructions issued by the Punjab government regarding identification parades. The following instructions have been issued by Punjab government for the guidance of magistrates in their conduct of identification parade. पंजाब गवर्नमेंट, ये बाकी वही जो सर्कुलर जो मैंने लिखा है ये 1936 वाला। पहली क्या है? लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स इंक्लूडेड इन द परेड शुड बी प्रिपेयर्ड, कि जिन बंदों को आप उस प्रोसीडिंग्स में शामिल कर रहे हैं वो डमीज जो हैं वो जिंदा, लेकिन हम उनको डमी कहेंगे क्योंकि हम रियल कल्प्रिट तक जाना चाह रहे हैं। उनकी लिस्ट, उनकी पेरेंटेज, उनका पेशा, आप एक चार्ट बनाएंगे। यू विल प्रिपेयर ए चार्ट एज ए मैजिस्ट्रेट, जिसमें आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे, सीरियल नंबर, नाम, पेरेंटेज, कास्ट, प्लेस ऑफ रेजिडेंस और प्रोफेशन। ये 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको ये चाहिए कि आपको ये आइडेंटिफिकेशन परेड हुई हो वो भी ले लें किसी कोर्ट से। बहुत से केसेस हैं जिसमें साथ पुलिस वो फाइल के साथ वो लगी होती है कि ये
फ़लाँ जज साहब ने या मजिस्ट्रेट साहब ने ये आइडेंटिफिकेशन पीरियड की है, वो ले लें. दैट विल गिव यू अ हिंट और आइडिया दैट हाउ इट इज़ कंडक्टेड एंड व्हाट मोड इज़ यूज्ड बाय मजिस्ट्रेट वाइल कंडक्टिंग इट. ये आपको हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, एंड कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर्ड. आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा इसके बारे में कि अगर आप 173 CRPC पढ़ रहे हैं तो 173 की कोई रिपोर्ट आपके सामने होगी तो आप बेहतर उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं. इस तरह अगर 172 की बात हो रही है, जिसको उर्फ़ आम में ये ज़िमनिया कहते हैं या इन्वेस्टिगेशन जो भी होती है, जिसको वो जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं रूटीन में, तो वो पढ़ेंगे, वो आपके सामने होगी 172 की, तो आपको पता होगा कि फिर वो कैसे लिखते हैं. अगर 161 की बात हो रही है तो 161 की स्टेटमेंट आपके कोई सामने होगी प्रैक्टिकली. ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए. वैसे तो ये मोल साहब अगर इनको आप रिक्वेस्ट करें तो मैं भी उनको कहता हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट आप ले आएँ, ठीक है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से डील करते हैं. ठीक है, in what form documents are collected by police? There are two files, one is police file and second one is judicial file. इन फाइल्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर वो एज ए स्पेसिमन फॉर इंस्ट्रक्टिंग यू, आपको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए अगर वो चीज़ें ले आते हैं, दोज डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. ठीक है, ये आप उनको भी कहें, मैं भी उनको कहता हूँ. उसमें अगर फोरेंसिक साइंस लैब की कोई रिपोर्ट है, ये एविडेंस है. अगर DNA की कोई रिपोर्ट है, वो कैसे बनती है, उसमें क्या लिखा होता है. ठीक है, फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट आती है कि ये क्राइम एम्प्टीज़ थी, ये हमने उधर मौके से इन्वेस्टिगेशन यही है ना कि मौके से वो लेते हैं, एम्प्टीज़ लेते हैं, वो होल लेते हैं, फिर बाद में बंदूक रिकवर हो जाती है, वो दोनों को बेचते हैं, उनकी मैचिंग रिपोर्ट आती है, मैचिंग आती है या मैचिंग नहीं आती, कुछ आता है, वो रिपोर्ट कैसी होती है. ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देखें तो आपको फ़ायदा होगा. उसके बाद चलें, लेक्चर तो चल रहा है इसका QSO का, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी, यू विल बी अ सक्सेसफुल जज, और जज बनने में भी आसानी हो जाएगी. ठीक है, अदरवाइज दे हैव क्रिएटेड इन दैट एग्ज़ाम इन सच अ वे दैट इट सीम्स टू बी एन अपहिल टास्क नाउ, कि ये उर्दू या फ़लाँ या जो कुछ भी है, नॉलेज ऑफ लॉ चेक करने के बजाय बहुत सी चीज़ें उन्होंने वो डिमांड कर दी. उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें कर लेंगे, आपको पता होना चाहिए कि इंटरम इंजंक्शन का आर्डर कैसे लिखना है. आपको आर्डर लिखना आना चाहिए. फिज़िकल रिमांड आपके पास आ जाता है तो आप रिमांड आर्डर में क्या लिखेंगी. जुडिशियल रिमांड आ जाता है तो आपने जुडिशियल आर्डर में क्या लिखना है. आपने लिखना है ऊपर IO इज़ प्रेजेंट विद रिकॉर्ड, IO इज़ प्रेजेंट विद द रिकॉर्ड, लर्नर ADP इज आल्सो प्रेजेंट इन कोर्ट. आप ये उनकी अटेंडेंस ऊपर मार्क करते हैं. ठीक है, फिर लिखते हैं कि IO हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर फिजिकल रिमांड फॉर 2 days फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकवरी, कि मैंने भाई बरामदगी करनी है, मुझे 2 दिन इसका जिस्मानी रिमांड दें ताकि मैं रिकवरी कर सकूं. आप लिखते हैं कि ऑलरेडी 2 days रिमांड, पिछले आर्डर का हवाला दे देते हैं, ऑलरेडी 2 days फिजिकल रिमांड वाज ग्रांटेड एंड नो प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड. फिर आप उसमें अगर प्रोग्रेस नहीं होगी तो रिमांड नहीं देंगे. ये ठीक है. अगर केस इस नोयत का है, कोई कैपिटल पनिशमेंट का है, तो फिर आप देखते हैं कि भाई चलो 1 दिन और दे दो. फिर तुसी उन्होंने डायरैक्शन दो IO ਨੂੰ कि यार कोई करके लियावी, नहीं तो फर्दर फिजिकल रिमांड नहीं लभेगा. ये सारी चीज़ें अगर आपके पास आर्डर भी होंगे, ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, स्टैट्यूट पढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ आएगी चीज़ों. हाँ जी सर, आइडेंटिफिकेशन पीरियड के अंदर टाइम का बड़ा कंसर्न है. हाँ, तो इसके अंदर जब कोई रीजनेबल सस्पिशन होता है या जो विटनेसेस हैं वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं कि हाँ जी हम पहचान सकते हैं, या मजिस्ट्रेट को कहते हैं हम पहचान सकते हैं अगर कोई इस तरह का एक्यूज हमारे सामने आता है. तो जब इस तरह का कोई एक्यूज मिल जाता है पुलिस को, तो जेल में कैसे पहुंचाते हैं? वो किसी और ऑफेंस में मिला होता है या इसी स्पेसिफिक ऑफेंस में ही उन्होंने ढूंढ लिया होता है? तो जेल में पहुंचते पहुंचते टाइम का बड़ा एक लैप्स है. तो इसको कैसे करना है? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, प्लीज क्लियर इट. समझ पा रहा हूँ. हाँ, या मेरा ही ध्यान नहीं होना. अच्छा, किसी चोरी के ऑफेंस के अंदर
कोई एक अक्यूज जो है वो उसने देख लिया मालिक ने, हम्म, और वो जाके रिपोर्ट लिखवा देता है कि जी मैं उसके सामने आने पे पहचान सकता हूँ, अच्छा, तो उसके बाद जो अक्यूज है वो किसी और ऑफेंस में पुलिस को मिल जाता है, हाँ, और जो रिजेम्बलेंस उसने बताई थी और पुलिस ने ये समझ लिया कि मे बी यही अक्यूज उस ऑफेंस में भी डिमांडेड है, तो इसे जिस ऑफेंस में उसे ढूंढ लिया गया है, पकड़ लिया पुलिस ने, उसमें उसे जुडिशियल रिमांड में भेजा, फिर ये जाके पिछले हाँ। ऑफेंस में हो रही है आइडेंटिफिकेशन। वो उस मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। अगर सपोज एक मुलजम जो है वो जेल में है और उसको जुडिशियल रिमांड पे किसी एक मजिस्ट्रेट साहब ने भेजा है, और लेटर ऑन को इन्फॉर्मेशन आती है कि यार फ़लाँ बंदा जो है ना वही मुलजम है, तो वो पुलिस स्टेशन वाले जो हैं वो अपनी वो इन्वेस्टिगेशन में अपनी इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट लेके जाएंगे उन मजिस्ट्रेट साहब के पास जिन्होंने उसको भेजा हुआ है, ठीक है, वो परमिशन होगी जिन्होंने भेजा हुआ है, दैट परमिशन विल बी ग्रांटेड बाय द सेम कोर्ट कि आप ले जाएं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उनका ये कहना होगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर उसमें वो कहेंगे कि भाई इस केस में भी इसका रिमांड जो है इसमें वो क्या कहते हैं इसको कि हमने करना है, आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो करनी है, ठीक है। वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है सक्सेसिव रिमांड्स का, वो जब कभी हमने रिमांड पढ़ा या मौका मिला तो फिर हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। सर अगर एक्यूज्ड कोई मॉब था या वहाँ पे ज़्यादा लोग प्रेजेंट थे ऑफेंस, और वहाँ पर कुछ लोगों ने सिर्फ किसी एक बंदे ने स्पेसिफिकली एक पर्सन को एक्यूज्ड बना दिया है, और वो जो एक्यूज्ड है वो ये कहता है कि वहाँ पर जो मौजूद दूसरा बंदे थे मैं उनको आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि ये मैंने नहीं किया, इन्होंने किया, तो क्या इस सिनेरियो में एक्यूज्ड आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करवा सकते हैं? हाँ, मैंने पहले ही कहा कि अक्यूज जो है रिक्वेस्ट कर सकता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो होनी चाहिए, राइट्स है ना। देखें ये CRPC रिवॉल्व्स अबाउट द राइट्स ऑफ अक्यूज्ड, ये सारे उसी के तो राइट्स हैं। अब इंडियन CRPC में तो इससे भी ज़्यादा राइट्स दे दिए गए हैं, ठीक है। ये जो आप 164B देखते हैं, चलें, अगर वो कोई फर्दर पर्सन का वो करता है, हाईलाइट करता है कि मैंने नहीं की, हाँ, इसने की है, आइडेंटिफिकेशन परेड तो उसकी होगी जिसके फीचर्स जो है जिनकी बात हो रही है कि ये डिस्क्रिप्शन हैं उस बंदे के फीचर्स की, FIR में उसके फीचर्स दिए गए हैं कि इस खुलिये का बंदा था, इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ये तो वो अलर्ज कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन वाले, तो आइडेंटिफिकेशन भी तो इसी की होगी ना, ठीक है। दूसरा उसमें ये राइट है, ही कैन रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। ये अगर इसमें आप केस लॉ देखें तो वो भी मैं आपको लेटर ऑन वो दे सकता हूँ। एक चीज़ जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यू कैनट गो फॉर वन line of dummies if witness has to identify 3 or 4 accused persons. There will be 3 or 4 lines of dummies, 4 sets. You cannot go identifying of the persons in one go, कि आप कहें कि ये जो आपके साथ 9 बंदे हैं जो हमने सेम फीचर्ड लाए हैं तो इसी में 3-4 मुलजम खड़े कर दें, ऐसे नहीं होगा। आपको हर मुलजम के लिए इंडिपेंडेंट रो चाहिए, ठीक है। एक और इसमें चीज़ के वो इट इज़ राइट ऑफ अक्यूज्ड, ही विल बी आस्क्ड दैट इफ यू वांट टू चेंज योर पोजीशन इन द रो यू कैन डू इट, सपोज टू रूल आउट द कम्युनिकेशन इशू, कि आपने पूरे इंतजाम किए हैं कि एक विटनेस कम्युनिकेट दूसरे के साथ ना कर सके, सपोज उसको मज़ीद एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आप ये कहते हैं कि अगर एक विटनेस गया है, गवाह गया है, वो कहता है कि वो इस साइड तो वेखे ना तो दूजे नंबर से बंदा ही, ठीक है। जब एक बंदा चला जाएगा, अक्यूज विल बी आस्क्ड इफ यू वांट टू चेंज योर पोजीशन यू कैन डू इट, इफ ही ऑप्ट्स फॉर द सेम पोजीशन इट इज़ हिज कंसर्न, मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, ठीक है। सर आर्टिकल को डिस्कस कर लें थोड़ा सा। हाँ, इसमें जब हम स्टार्ट में आते हैं फैक्ट्स नेसेसिटी टू एक्सप्लेन, आप मुझे ये बताएं, सॉरी सर ये बस 2
नहीं पढ़ते हैं, उसी को पढ़ते हैं, मैं उसी को पढ़ते हैं, देखते हैं, एक एक वर्ड पढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आइडेंटिफिकेशन परेड का क्वेश्चन अगर आपको आता है, डू यू थिंक दैट आर्टिकल इज सफिशिएंट that you can sum up your question and you can score maximum marks? No. You have to put a relevant and pointed material in your exam, and that is the relevant material which you can write in your exam. ठीक है, अगर आपका ये सवाल है आपके ही फ़ायदे के लिए, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का हवाला देंगे, उधर वो प्रिकॉशंस लिखेंगे, ये नंबर लिखेंगे, ठीक है, जजमेंट का हवाला देंगे, जजमेंट का विद साइटेशन फलां वर्सेस फलां जजमेंट है, ठीक है, उसमें ये जजेस हैं 3 फुल बेंच है या जो भी है, उन्होंने ये होल्ड फरमाया है, यू विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। अब आप शुरू करें, पढ़ें। इसलिए ये दो हैं, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस। एक्सप्लेन तो वो फैक्ट है ना, जैसे हमने कहा कि पॉइंट आउट कर दिया गया है, वो पहले से इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन ये आर के साथ इंट्रोड्यूस अ फैक्ट होता है कि फिर नए सिरे से कैसे। If at later stage investigation continues, you can go for successive investigations. If one report under section 173 CRPC after concluding investigation is submitted in court and later on some new fact comes to the fore, you can go for another investigation. If initially some material is brought on record and later on higher police officials are the same, even the same police official says that such and such new development has been made, so that's why successive investigations are conducted. इसीलिए इन्वेस्टिगेशन स्टॉप नहीं होती, 173 की रिपोर्ट आती है, उसके बाद फिर आ सकती है, ठीक है। यू हैव टू डिवेल्प अ नेक्सस बिटवीन ऑल दीज लॉज, QSO, CRPC, PPC कंजाइंटली, यू विल स्टडी दीज सब्जेक्ट्स इन वन। आप सबको ये किताबें, तीनों किताबें जो है वो अपने PPC B1 ये सामने रखनी चाहिए, ये दीज आर को रिलेटेड, ठीक है। और उसके साथ आपका हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर जो वॉल्यूम 3 है, या जो कुछ भी आप समझते हैं, ये चीज़ें सारी इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? सर आपने कंसेंट ऑफ एक्यूज की बात की थी, तो क्या एक्यूज से पूछ के आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट की? नो, दैट फैक्टम विल बी रेड अगेंस्ट एक्यूज्ड। अगर मुल्ज़म ये मुद्दई ये कहता है कि भाई हमने शनाख्त परेड, पुलिस ये कहती है कि करवाना ज़रूरी है इसमें, ठीक है, और अगर मुल्ज़म ये कहता है जी मैं नहीं करवानी, ठीक है, डोंट यू थिंक दैट विल बी रेड अगेंस्ट हिम, दैट विल बी कंस्ट्रूड अगेंस्ट हिम, दैट इज अ सर्कमस्टांस which is pointing towards him that he denies to be identified in parade proceedings, ठीक है। सर जब ऑफेंस इस तरह का कमिट हुआ हो जो कि ट्रायल बाय सेशन हो, तभी जो है ना मैजिस्ट्रेट, हाँ, ये बीइंग फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट यू विल डील ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल रिमांड्स। आप की ज्यूरिस्डिक्शन जो है टू सेंटेंस समवन इज 3 साल है, या सेक्शन 30 तो 7 साल हो जाएगी, या जो भी है। लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन you are in charge of investigation, you will deal every kind of offense, even if it entails capital punishment, it relates to murder charge, you will give remand, physical remand, request will be made to you for judicial remand. You are not trying because investigation is under progress, you have क्या कहते हैं उसको, ये सर्वेलेंस है आपकी, ठीक है। ट्रायल तो वो जो जिसका भी होगा, आप देखें वो उसमें अगर ATC का मामला होगा तो उसमें बीइंग मैजिस्ट्रेट काम वही करेंगे जो ATC के जज हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेकिन इसमें आप मटेरियल जितना रेलेवेंट लिखेंगे, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमने लिखना क्या है,
ठीक है। सर अब जैसे ये नंबर्स हैं ये तो बहुत मुश्किल है मेमोराइज करने के लिए। हाँ ये जो आपने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स ये हाथ से लेके ले आ जाओ ऐसे करके नहीं। कितने सेक्शंस के लिखने के जी जी कितने आर्टिकल्स के लिख सकते हैं हम हाथ पे? नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा। हो जाएंगे फिर हाँ नहीं हो जाएंगे बस, लेकिन आप अगर इतना भी लिख दें कि वो जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया 1936 में, ठीक है, फॉर सच एंड सच पर्पस, ये गाइडलाइंस थी उसमें, आप ये लिख दें। फिर 1943 में ये कहा, आप ये लिख दें। ज़रूरी नहीं है कि इसको अब इसकी नंबर याद करने हैं। ये दिस इज़ क्रिएटिविटी, आपने अपनी क्रिएटिविटी से चलना है ना, ये तो नहीं है। और कोई सवाल आपके ज़हन में? ये जो कैमरे के जरिए इस तरह भी आइडेंटिफिकेशन होती सीसीटीवी फुटेज की है वीडियो लिंक से। हाँ अब देखें, अब थिंग्स जो चेंज हो रही हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, अब गवाह जो कहता है कि मैं उसके सामने नहीं जाना, ठीक है, दीज मोड्स आर अप्लाइड नाउ, कि भाई वो इस जगह पे होगा जहाँ से मुल्ज़म उसको नहीं देख सकेंगे लेकिन गवाह उसको देख सकेगा, ठीक है। ये विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट आपने पढ़ा होगा, उसको ज़रा पढ़ेंगे, यू विल इन्फर दीज थिंग्स, कि आपको पता चलेगा कि विटनेस को किस तरह प्रोटेक्शन होनी चाहिए। बहुत से गवाह जो है डर जाते हैं, वो भाग जाते हैं, और रियलिटी में ऐसे होता है। तो फिर वो प्रोटेक्शन तो विटनेस चाहते हैं, या इफ़ दे आर एडिंग सोसाइटी और लेटर ऑन वो एड करते करते अपना वो बेड़ा गर्क कर ले, ये बड़े हाई हैंडेडनेस होती है इनकी, पुलिस वालों की, जो एक्सपोज करते हैं इनको, गवाहान को। सर वो ट्रेन डॉग नहीं होती है, उनके जरिए ये आइडेंटिफाई होती है, तो वो भी आइडेंटिफिकेशन ट्रैक एविडेंस, देयर आर काइंड्स ऑफ एविडेंस, बहुत सी किस्में हैं, ठीक है। वो ट्रैक डॉग्स जो होते हैं वो जाते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन तो वो जैसे स्मेल करते हैं या वो ट्रेंड होते हैं, वो एक अलग मैटर है कि जिस एरिया से वो गुजरते हैं। उससे पहले भी होता था, उससे पहले बंदे होते थे जिनको पंजाबी में खोजी कहते हैं, ठीक है। वो ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ मवेशी डंगर थे, वो जिस जगह से वो गुजरते थे तो वो खोजी बुलाते थे, और वो खोजी कहते थे ये इस तरह इस एरिया से वो बंदे गुजर के गए हैं। जब वो पक्के पे आते थे तो फिर वो खोजी ख़त्म, मेटल्ड रोड पे आते थे तो फिर वो उनकी पोजीशन हो जाती है वहाँ पे। फिर वो ट्रैक डॉग्स जो है सर ये मतलब आइडेंटिफिकेशन की है पर्सन्स की, अगर प्लस आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स को थोड़ा डिस्कस करिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स जो है, ये आपको जब से आपने ये आपका एग्ज़ाम हो रहा है ना, ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उस पर एक लेक्चर रख लें, वो भी बता दूंगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा। और कुछ? हाँ कंप्लेनेंट कह सकता है, कोई इशू नहीं। कंप्लेनेंट ही वो बंदा है जो फीचर्स दे रहा है, ठीक है। तो फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस, क्योंकि वेन एवर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रिपोर्टेड टू पुलिस, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स, कलेक्शन ऑफ एविडेंस प्रोसेस स्टार्ट्स, और उसके बाद ये चीज़ें जो भी आएंगी तो वो एविडेंस में होंगी, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ कि वो आप जितने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, उनकी एक वो फाइल फोल्डर जो भी आपने बनाना है वो बनाएं, उसको गाए बगाए देखते रहें, यू विल कम्प्रीहेंड थिंग्स वेरी इजीली। अदरवाइज तो जिस तरह ये कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही, जब तक आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप करके फिर पढ़ेंगे, इंटरेस्ट डेवलप होगा। रीड इट लाइक अ स्टोरी, इसको दिलचस्पी से पढ़ेंगे तो फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, तो फिर ही आपको समझ भी आएगी ना चीज़ों की। तो जब आप इससे डरेंगे, इतना बड़ा काम तो ये नहीं है, ये कोई इतना काम नहीं है कि आप कर नहीं सकते, यू विल डू इट, आपने कर जाना है। जब क्यूएसओ पढ़ती थी तो मैं सोचती थी इसका पेपर कैसे अटेम्प्ट होगा, एक सेक्शन के पीछे। अब थोड़ा डायरेक्शन मिल हाँ, है कि वाकई एक सेक्शन को किस तरह देखिए ना, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको मोटिव पे, ये 21 निकाले ज़रा, आर्टिकल 21 है ना मोटिव, ठीक है। अब मोटिव जो है
हर FIR में डिस्कस होता है, लिखा होता है नीचे कि वजह अनाद ये है कि इसने फ़लान टाइम पे मुझे ये कहा, तो वहाँ से फिर वो हमारा स्टार्ट हो गया। दैट इज़ मटीरियल। अब आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मोटिव पे लिखें जी, ठीक है। 2 जजमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, एक प्रोसिक्यूशन साइड से जिसमें उन्होंने कन्विक्शन की हो और लिखा हो दैट वाज द मोटिव फॉर विच ही कमिटेड सच अ हीनस ऑफेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द केस। अगर वो जजमेंट आप लिख लें कि आप कहते हैं 2010 PCRL जे फलां, आपको याद है और सवाल मोटिव पे आ गया। एक जजमेंट आप रख लें कि मोटिव इज अ डबल एज्ड वेपन। If motive can be a ground for implicating someone in a real case, that he was the person who committed such and such occurrence, at the same time motive can be a reason to implicate falsely. That's why motive is treated as a double edged weapon के वजह बना के इंजे ही पा लो, इनू भी FIR च रख लो तो इनू भी रख लो, ठीक है। अब वो 2 जजमेंट्स आपके पास होंगी, ठीक है। एक भी मोटिव है सी तां मारिया, एक मोटिव है सी ते इंजे मोटिव की वजह नाल ना पुरानी इन्हां दी इन्हें गवाही दी सी, उहदी वजह नाल इन्हें झूठी FIR च लिया है, बंदा बरी है, फारग है, क्योंकि जज दोनों पासे जजमेंट्स देंगे हैं जज ने। वो 2 जजमेंट्स आपके पास होंगी और आर्टिकल 21 होगा, ठीक है। तो आप फिर उसमें फ्रेजेस लिखेंगे, मोटिव इज अ डबल एज्ड वेपन, इट इज अ सोर्ड विच कट्स बोथ वेज, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देंगे तो सवाल पूरा, कोई इशू नहीं। एक मिसाल दे देंगे कि A ने B को इस रीज़न से मारा, उसमें ये मोटिव था, ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं पूरा होगा? We have to be more focused on Supreme Court judgments. हाई कोर्ट भी There are some kind of contrary judgments. जी ऐसी judgments भी हैं जो against और for हैं। Supreme Court की superior है तो वो That's why statute is preferred, because you cannot cite precedents in criminal cases, because no 2 criminal cases have the same circumstances. Each criminal case is distinguishable from the other one. This is the reason for contradictory judgments, ठीक है। तो आप फिर ऑप्ट करेंगे, अगर फुल बेंच की एक जजमेंट है, 5 जजेस का फैसला है या 3 जजेस का फैसला है, ठीक है, और उसके मुकाबले में 1 जज का फैसला है, यू विल गो फॉर द फुल बेंच। वो उस अगर इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये जजमेंट, सपोज अगर PLD 1953 फेडरल कोर्ट 1953 जो भी है, सफदर वर्सेस स्टेट एक बड़ी जजमेंट है, ठीक है, वो अभी तक वही है, उसी पे चल रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन हैज़ टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स। आप मैम अगर आपने प्रोसिक्यूशन का एग्ज़ाम देना है तो आप वो ना, आपका कोड ऑफ कंडक्ट है प्रोसिक्यूशन का, वो जो कुछ गाइडलाइंस आपकी भी हैं, वो रेड सी बुक है छोटी सी, वो पढ़ें, उसमें जो जजमेंट्स हैं वो पढ़ें, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है प्रोसिक्यूटर बनने के लिए, सिर्फ वही पढ़ लें तो आप प्रोसिक्यूटर बन जाएंगे, ठीक है। बाकी क्राउन प्रोसिक्यूशन एक्ट इंग्लैंड का 2006 का पढ़ लें, ठीक है, और अपना पढ़ लें। ये प्रोसिक्यूशन को ये ज़हन में रखना चाहिए बीइंग प्रोसिक्यूटर कि आई एम नॉट हेयर टू प्रोसिक्यूट दैट पर्सन, आई एम हेयर टू असिस्ट द कोर्ट। हमारे प्रोसिक्यूटर क्या करते हैं अदालतों में, जब को उनको पता होता है कि मुल्ज़म बेगुनाह है या ये मामला नहीं बन रहा, इवन देन दे आस्क कोर्ट फॉर कन्विक्शन फॉर नो रीज़न। बस वो प्रोसिक्यूशन है जी, वो प्रोसिक्यूशन का काम ही ये है, ये अपने ज़हन से बात भी निकाल दें, ठीक है। वो एक अलग बात है कि अगर आप वो नहीं करेंगे या अपोज नहीं करते तो फिर वो आपके नालायक कोई प्रोसिक्यूशन जो आपको हेड कर रहा है, कोई PG, वो कहेगा है तू की कीता है, ठीक है। अदरवाइज दुनिया में क्राउन प्रोसिक्यूशन एक्ट देखें, जर्मन का देखें, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट दे डू। 99% कन्विक्शन रेट है, 98% अगर जर्मन की प्रोसिक्यूशन को केस भेजती है कोर्ट में, तो
तो कन्विक्शन होती है। वो चूँकि हमारा इस तरह मामला है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और प्रोसिक्यूटर